Hello everyone, welcome to Rotap. My name is Santosh and today we are going to have another session of the top 5 MCQs, and in this particular session we are going to discuss the MCQs of the stock level topic and of the EOQ, that is economic order quantity. So just like the previous session, what we are going to do, we are going to have a good understanding of the question and of the underlying concept as well, right? So before proceeding to the first question, I want to discuss with this economic order quantity with all of you so that you have a good understanding of the basic of the EOQ. Then we are going to proceed forward to our first question, right? So let's try to understand what is this EOQ and why it is necessary to calculate. See, let's suppose I am a manufacturing firm, और यू कैन से मैं एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म हूँ मोबाइल कंपनी का, और आई डू दी असेंबलिंग ऑफ द कंपोनेंट्स टू सेल द मोबाइल, राइट? एंड टू assemble all the components I require these components from my suppliers, and one of the component, let's say, is chip, semiconductor chip. Let's say it's a very advanced mobile and I need a semiconductor chip, right? Now सपोज कि मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ बाहर से, ओवरसी मार्केट से, लेट्स से फ्रॉम द कोरिया आई एम ऑर्डरिंग दिस चिप. नाउ मैं कितना क्वांटिटी एक लॉट में मतलब एक बार में मैं कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करूँ उस चिप की, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना. सर क्यों करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ. अगर मुझे रिक्वायरमेंट है पूरे ईयर में 1000 चिप्स की, लेट्स से, ठीक है, अब मैं एक बार में 1000 चिप मंगा लूँ, एक लॉट में ही सारा इंपोर्टिंग कर लूँ या सारा सप्लायर से ऑर्डर कर लूँ, या फिर मैं 100 क्वांटिटी का एक लॉट ऑर्डर करूँ और इसको ऑर्डर 10 बार करूँ, राइट? और व्हाट कैन आई डू, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऑर्डर 500 quantities in one lot, thereby I am ordering 2 times. Did you get till now? Now what is the impact on the ordering cost? Let's suppose the ordering cost is 100 rupees, right? Your ordering cost is, let's suppose, 100 rupees each time you are going to order. So in case I am ordering all the 1000 chips together, I am going to incur only 100 rupees as my ordering cost, isn't it? Now if I order 100 quantities and I have to order it 10 times, right? And the ordering cost for ordering it one time is 100 rupees and I am ordering it 10 times, therefore my ordering cost will be 1000 rupees, isn't it? Now let's take the example of 500 quantities in single lot. So 2 times I have to order and a cost I am going to occur for each time is 100 rupees. So 100 into 2, that is 200 rupees. So as you can see here, if I am changing the quantity of my lots, my ordering cost is differing in each of the scenarios, isn't it? So you might say, sir, ये तो अच्छा हो गया, we are going to order 1000 quantity in single lot, thereby we are saving huge money on this ordering cost. You can say this to me, right? कि सर हम 1000 ऑर्डर कर देते हैं एक बार में, thereby we are only going to incur 100 rupees in the ordering cost. But that's not the only factor you need to consider, because I have told you have to minimize the overall cost. And what does this overall cost includes? It includes your ordering cost, obviously we are talking about this, plus your storage cost as well. Now what is this ordering cost? Ordering cost में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ गई, कोटेशन की जो हमने डिमांड रखी वो भी कॉस्ट भी आ गई. तो एवरी कॉस्ट राइट फ्रॉम द आस्किंग ऑफ द कोटेशन till the raw material is supplied to our door, each and every cost is included in the ordering cost. So what is the storage cost? Storage cost is very simple. Cost of holding the inventory in our warehouse is your storage cost, and the purpose of the firm is to minimize the sum of these two costs. Are you getting this? मेरा पर्पस है कि इन दोनों कॉस्ट के सम को मैं मिनिमाइज करूं बाय एनालाइजिंग दी
right quantity I have to order in a single lot. That's why EOQ is important. अब आपने तो मुझसे क्या दिया सर, हम 1000 चिप्स एक साथ मंगा लेते हैं, 100 रुपीज़ की ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी. बट सी हेयर वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमने 1000 चिप एक साथ ऑर्डर कर ली तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वी हैव टू नाउ स्टोर 1000 चिप. इफ वी रिक्वायर ओनली 2 चिप्स इन अ मंथ, or you can say 200 chips in a month, why we are ordering 1000 chips and we are storing it in our warehouse and we are increasing the storage cost, isn't it? क्योंकि जो स्टोरेज कॉस्ट होती है वो पर यूनिट पर एनम होती है. तो जितनी यूनिट्स हम ऑर्डर कर देंगे एक साथ और स्टोरेज करने में तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी. सो वी हैव टू फाइंड दिस EOQ in such a way that these two costs, the sum of these two costs is minimum and that quantity of lot is EOQ. बात समझ में आती है? तो ये इतने से नहीं होगा, ठीक है, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई EOQ इज इंपॉर्टेंट. अब you have a good understanding of what is EOQ and why it is required. Let's move ahead with our first question, right? Okay, so the first question says demand for the product wide at a company pitch is 500 units per month. It is given per month, so we have to calculate the annual demand for the whole year, right? So let me write it as A. So 500 into 12, that will be your 6000 units. Now your transportation, receiving cost, your order placement, overall it's the ordering cost. We have discussed what is this ordering cost in our previous slide, right? So that is your 8000 rupees. Now your carrying cost must be given to you, and that is each unit of product wide cost rupees 1000 and the company has a holding cost of 25%. So it is given to you in a percentage form, and percentage should be calculated with respect to the cost of the product that we are ordering, and that is given to you as 1000 in this particular question. So 25% of the 1000, that is 1/4 of the 1000. 25% is 1/4 na. Okay, so that means 250 rupees. So we have the formula to calculate the EOQ by considering both of these factors. In fact, both of all of these factors. That is your formula is your 2 square root of 2 AB into C. A is annual demand, B is your this ordering cost, C is your carrying cost. Very easy. You just need to put values here. 2 into A is your 6000 unit. Ordering cost is 8000. And your carrying cost is 250. 6 zeros, that means let's calculate this. 60 will become 30 if I consider it outside. 25 becomes 5. So in the square root, what you have, 2 into 6 into 8, isn't it? And this becomes your 200, and you have this 6 to the 12, 96, and when you divide it by this, it becomes 9.6. So approximately square root of 9.6 is approximately 3.0 something. So when you are going to multiply it 3.01, so you will get approximately 600, right? So let's look at the options now. You have 620, 258, 356. So only one option is close to 600. So your correct answer is 620. So you can do it exactly as well, huh? You can do it in accurate form as well. I have calculated it approximately because I wanted to see if any other option relates to 600 or not. If there is any other option with respect to the 600 or close to 600, I should have calculated it accurately. I should be doing the square root of 9.6 accurately. Okay? And one thing I also want to tell you that in the phase 2 examination, you have the calculator as well. So you can use that as well. But for this question, I don't think you need a calculator to calculate this much calculation, right? So I have done this in front of you. You can also do this with hand. Okay. So I have already explained what is this EOQ. It is basically the minimum when you try to minimize your ordering cost plus your storage cost, then the quantity in a lot is your EOQ, that is economic order quantity. Let's move to the second question that talks about the reorder level
or A based on the following information. So you need to calculate the reorder level. Now first let's try to understand the stock levels, different stock levels, then we are going to attempt this question, right? Okay, see, we have the certain stock level or certain inventory, and on the daily basis those inventory is getting consumed, right? कुछ ना कुछ तो inventory daily basis पे consume हो रही होगी ना. So this is what depicted here in this chart. Please understand this very carefully. You will have a good idea, good understanding of the stock levels. Then you will not face any problem with relation to the numericals of the stock levels. So we have been given the time in x-axis and we have the units in the y-axis. अब यहाँ पे reorder level पहले समझ लेते हैं कि क्या है. Reorder level वो level है, क्वांटिटी स्टॉक का वो लेवल है, मतलब क्वांटिटी का वो लेवल है जहां तक अगर क्वांटिटी हो गई तो मैनेजमेंट क्या करेगी, दोबारा नया लॉट ऑर्डर कर देगी. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. हाँ, ध्यान देना यहाँ पे. ये लेवल है, अगर स्टॉक का लेवल पहले मान लेते हैं ये था, अब डेली बेसिस में कुछ ना कुछ कंज्यूम हो रहा है तो रेट ऑफ कंजम्पशन हुआ. अब ये स्टॉक लेवल यहाँ पहुँच गया. अब मैनेजमेंट को पता है कि अगर स्टॉक लेवल यहाँ हो जाएगा तो हमें दोबारा से ऑर्डर करने हैं. वी हैव टू अगेन रीऑर्डर, राइट? तो दिस इज व्हाट योर रीऑर्डर लेवल इज, कि जिस लेवल पे स्टॉक लेवल आ जाता है अगर हमें रीऑर्डर करना पड़े तो हम कभी भी ध्यान रखना, व्हेन एवर यू आर स्टडिंग कॉस्टिंग, so you have to consider yourself as a cost accountant. When you are studying accountancy, you have to consider yourself accountant. When you are studying management, you need to consider yourself CEO or the manager. इसी तरह सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, ठीक है? तो जब मैं बोलूँ कि हम, तो मतलब हम एक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट का हिस्सा हैं, देन यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स. ये पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. तो रीऑर्डर लेवल में हमने क्या किया, हमारी जो इन्वेंट्री थी वो एक लेवल तक आ गई, फिर हमने फिर से ऑर्डर कर दिया क्योंकि हमें पता है इसके नीचे जाएंगे, अगर इसके नीचे अगर स्टॉक लेवल चला गया तो रिस्की है हमारी फर्म के लिए. तो दिस इज व्हाट योर रीऑर्डर लेवल इज. अच्छा, मैक्सिमम लेवल क्या है, हमने रीऑर्डर कर दिया और मान लेते हैं कि जो टाइम ड्यूरेशन है शिपमेंट का या हमारे तक पहुंचने का उस रॉ मटेरियल को, वो 10 दिन लगते हैं, 1 से 10 दिन लगते हैं. तो मान लेते हैं कि वो एक ही दिन में आ गया हमारे पास जो हमने ऑर्डर किया था. वॉट एवर रॉ मटेरियल्स वी हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम द सप्लायर दैट रीच्ड टू अस विद इन 1 days, देन whatever inventory we have plus the new inventory we got within 1 days, the total of it will become your maximum level. तो maximum level of inventory आ गई, ठीक है? This is the quantity of the inventories we have at any point of time, right? And when it is maximum then we call it maximum level, कि इससे ऊपर तो स्टॉक लेवल जाएगा ही नहीं, इससे ऊपर तो हमारी इन्वेंट्री जाएगी ही नहीं. दिस इज व्हाट योर मैक्सिमम लेवल इज. नाउ मिनिमम लेवल क्या है, अगेन जस्ट रिवर्स ऑफ मैक्सिमम लेवल, कि इससे नीचे तो नहीं जाएगी इन्वेंट्री हमारी. दिस इज व्हाट योर मिनिमम लेवल इज. व्हाट इज दिस लीड टाइम, टाइम ड्यूरेशन. दिस इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच वी आर गेटिंग द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सप्लायर. सो बिटवीन द पॉइंट्स we have ordered and we have received, the time period between that is what your lead time is. Got it? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. इतनी सारी चीज़ समझ में आ गई. रेट ऑफ कंजम्पशन इज बेसिकली है नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन. देखो, ज़रूरी नहीं है ना कि ये फिक्स हो. अब मान लेते हैं कि एक दिन में 10 से लेके 20 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो मिनिमम कंजम्पशन 10 है, मैक्सिमम कंजम्पशन 20 है और एवरेज कंजम्पशन कितना है, 15 है. इजी इनफ, नॉर्मल मैथमेटिक्स, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. सो अब एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं सारे के सारे, कि फॉर्मूले को बनाते कैसे हैं. रटने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू क्राइम एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ द फॉर्मूला इज गेटिंग डेराइव्ड सो दैट यू कैन रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, रटने की कोशिश कम से कम करनी है हर चीज़ में. आगे देखते हैं कि रीऑर्डर लेवल का कैसे इन्हें फॉर्मूला बनाया है. मैं बताता हूँ कैसा बनाया होगा. यहाँ पे ये हमारा रीऑर्डर लेवल है. मेरी बात ध्यान सुननी सबको. हाँ, रीऑर्डर लेवल कैसे डिसाइड हो रहा है, एक दिन में मान लेते हैं कुछ मैक्सिमम कंजम्पशन है. बात ध्यान सुनना. मान लेते हैं कि मैक्सिमम कंजम्पशन 10 days का है, ठीक है? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कितना है, 10 यूनिट्स का है. एक दिन में मैक्सिमम कितना जाएगा, 10 यूनिट्स कंजम्पशन हो जाएगा. 1 to 10 यूनिट है लिमिट, मैक्सिमम 10 यूनिट्स कंज्यूम हो जाती है एक दिन में. और जो लीड टाइम है या फिर इन्वेंट्री टाइम है जो आने में लगता है इन्वेंट्री, वो है हमारा मान लेते हैं 5 से 10 दिन का.
तो मैक्सिमम टाइम इट कैन टेक, इट द सप्लायर कैन टेक टू डिलीवर अस द रॉ मटेरियल इज 10 डेज। तो इन 10 डेज में अगर हर दिन 10-10 यूनिट कंज्यूम हो जाए तो टोटल यूनिट्स कितनी कंज्यूम हो जाएंगी? 100। तो यही हमारा रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल मतलब वो लेवल हमको अपनी सिक्योरिटी बचा के रखनी है कि भाई इतना हमारे पास स्टॉक लेवल तो होना ही चाहिए, जिससे कि अगर सप्लायर मैक्सिमम टाइम भी ले डिलीवर करने में तो हम आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाएं। आज समझ में आ रही है? एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ फर्म क्या सोचोगे आप कि हमारे पास कमी नहीं होनी चाहिए स्टॉक्स की, तो इसीलिए ये फॉर्मूला इस तरह से बना हुआ है। बात समझ में आती है? थोड़ी मोटी बुद्धि समझना है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझना है। अरे मेरे पास ये रिमोट है, हर दिन एक रिमोट बिकता जा रहा है और रिमोट को आने में 10 दिन लगना है अगर मैं नया ऑर्डर करता हूँ, ठीक है, तो मैं कितनी सिक्योरिटी लेके चलूंगा? आज अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, 10 दिन लग गए मान लो, और हर दिन एक एक रिमोट बिकते जा रहे हैं, तो मेरे पास कम से कम 10 रिमोट और होने चाहिए ना स्टॉक में। तो यही 10 रिमोट जो हैं ये रीऑर्डर लेवल है। अब आगे बात समझ में? 2 एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं बता सकता मैं, ठीक है। मैक्सिमम दोबारा सुन लेना अगर नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अच्छा है, मज़ा आएगा। अब मैक्सिमम लेवल देख लेते हैं क्या है, आसान है फिर से। जिस लेवल पे रीऑर्डर हमने किया, जो हमने स्टॉक बचा के रखा था रीऑर्डर करते टाइम पे, जो बचा हुआ है, और अगर हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी भी आ गई तो मैक्सिमम लेवल आ जाएगा। बट इसमें कैच है, जो हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी आई है हमारे पास, उसको आने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो उतनी उतनी जो इन्वेंट्री है वो डिक्रीज भी तो हो जाएगी। मैक्सिमम यहाँ से आ जाएगा बट कुछ तो डिक्रीज होगा ना, जो हमने रीऑर्डर लेवल था हमारा उससे कुछ तो डिक्रीज होगा ना। कितना डिक्रीज हो सकता है? अगर मैं मैक्सिमम लेवल निकालना है तो हम मिनिमम से मिनिमम डिक्रीज करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेवल निकालना है। तो मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, कि कम से कम टाइम लग रहा है और कम से कम कंजम्पशन हो रहे हैं, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम लेवल आ जाएगा, इजी इनफ, ठीक है। अब मिनिमम लेवल देखते हैं। मिनिमम लेवल में हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जो कंजम्पशन है वो नॉर्मल कंजम्पशन है, मतलब एवरेज कंजम्पशन है, ना कि मिनिमम ना कि मैक्सिमम, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। मिनिमम लेवल क्या होगा? जितना रीऑर्डर लेवल है उससे नीचे जाओगे तो मिनिमम लेवल आएगा, रीऑर्डर लेवल के ऊपर जाओगे तो इसीलिए प्लस किया है, रीऑर्डर लेवल में प्लस करोगे तो मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल में माइनस करोगे तो मिनिमम लेवल। बट माइनस करोगे क्या, मैंने बताया एवरेज लेते हैं, यहाँ हम अज्यूम करते हैं कि हमें एवरेज लेना है। तो क्या करोगे? नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कर दोगे, ठीक है। बात समझ में आती है? डेंजर लेवल एकदम नीचे का लेवल होता है, इससे भी नीचे लेवल होता है, इसको नहीं भी याद रखोगे कोई नहीं, बट इसमें भी एक अजम्पशन है कि नॉर्मल कंजम्पशन हो रहा है। तो नॉर्मल कंजम्पशन अगर हो रहा है और मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड लग रहा है अंडर इमरजेंसी कंडीशंस, तो वो डेंजर लेवल है, मोस्ट डेंजर। नाम से समझ में आ रहा है कि बहुत डेंजरस है ये कंपनी के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके ये खाली इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज़ करेंगे, हम इसको सेल नहीं करते, हम डेंजर लेवल के नीचे जाते ही नहीं है, एकदम इमरजेंसी कंडीशन में ही हम इसको यूज़ करते हैं कंजम्पशन के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब बता दिए। अच्छा क्वेश्चन पे तो आ जाए। कॉन्सेप्ट यू हैव, आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विद यू। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, आई थिंक वी हैव टू कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल and we have been given various information। तो as we know that कि रीऑर्डर लेवल हमारा किससे आता है? रीऑर्डर लेवल आता है मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइडेड है उसका हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करेंगे, सिर्फ हम मैक्सिमम यूसेज को लेंगे और मैक्सिमम पीरियड को ले लेंगे, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ईजी इनफ, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। तो you have this 75 into 6 that is 450 यूनिट्स। अब ये मैं मल्टीप्लाई करना तो नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, ये एक्सपेक्ट मत करना उससे। 450 यूनिट्स आ गया हमारा आंसर। रिमोट कहाँ गया? एक मिनट। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इट सेज कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर ए and you have been given information about A and B as well, okay, so you have to calculate for A from the following information. Stock turnover ratio, let me first discuss the meaning of stock turnover ratio, then we will move ahead with this question. Try to understand it, try to comprehend this stock turnover ratio with the wordings itself. stock turned कर रहे हैं हम, मतलब हमारे पास जो भी एवरेज स्टॉक है ना, उसको हम कितने बार कंज्यूम कर ले रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको कितनी बार हम टर्न कर ले रहे हैं, उसको कितनी बार हम कंज्यूम कर ले रहे हैं। मतलब सर क्या होता है इसका? देखो फॉर्मूले समझो।
मैंने बोला जो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है इसको हम कितने बार टर्न कर ले रहे हैं, कितने बार कंजम्पशन में यूज़ कर ले रहे हैं। और अगर हम कंजम्पशन में यूज़ कर लेंगे तो वो कॉस्ट में आ गया ना, क्योंकि वो बिक गया बाद में, तो वो कॉस्ट में आ गया। तो यहाँ लेंगे हम कॉस्ट, यहाँ लेंगे हम कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो मैं बता दूंगा कि मेरी इन्वेंट्री कितने बार टर्न हो रही है इन एन ईयर, इन अ ईयर कितनी बार टर्न कर ले रहा हूँ, कितने मेरा यूसेज कैसा है मेरी इन्वेंट्रीज का। तो ये मतलब है स्टॉक को टर्न करने का, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो ये। लेट्स सी, परचेजेस हमारे पास इतने हैं और हमें ओपनिंग दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है। तो परचेजेस का मतलब ये है क्या कि हमने सारा कंज्यूम कर लिया? नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ ओपनिंग भी है। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस करने पड़ेंगे। तो 1,25,000 प्लस 25,000 कितना हो गया? 1,50,000। तो ये हमारे पास अभी इन्वेंट्री है। बट क्या मतलब है इसका कि हमने सारा कंज्यूम कर लिया? नहीं, कुछ स्टॉक बच गया हमारे पास 15,000। इसका मतलब है हमने कंज्यूम कम किया था। कितना कम? 15,000 कम कंज्यूम किया है। तो कितना आ जाएगा? 1,35,000 आ गया। ठीक है, हमारा न्यूमरेटर आ गया। अब हमें क्या करना है? डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री से। तो एवरेज इन्वेंट्री तो मैथमेटिक्स से सिंपल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो वी हैव द ओपनिंग ऑफ 25,000 एंड वी हैव दी 15,000, दैट मीन्स 40 बाई 2 20,000। 20,000 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 13.5 डिवाइडेड बाई 2, 6 टू 12, 6.5 अप्रॉक्सीमेटली 6 हो 6 के 2 दे रखे हैं। अब मुझे एग्जैक्ट करना पड़ेगा। सी 6 का ये भी है, 6 का ये भी है। ठीक है, तो कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अगर 6 का डबल करेंगे 12 हो जाएगा, 7 का करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो ये 6.25 आना चाहिए इसका आंसर, 6.75 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 6.75 को ट्वाइस करेंगे तो 13.5 आ जाएगा। इजी इनफ, मन में हो गया, कुछ कैलकुलेटर की जरूरत तो थी नहीं। ठीक है, सो 6.75 इज आर आंसर। इसे देखने की जरूरत नहीं, मैंने बता ही दिया पहले। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। फोर्थ क्वेश्चन वी हैव इज कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगेन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये तो मेरे ख्याल से कर ही लेंगे सब बच्चे। ई ओ क्यू टू ए बी डिवाइडेड बाय सी। तो वी हैव ए एज एनुअल डिमांड कितनी है, कंजम्पशन कितनी है, मतलब वही 10,000 kg की है। तो वी विल पुट 10,000 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 750 पर ऑर्डर है, तो हम 750 ले लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी है, या स्टोरेज कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर वन एंड सेम थिंग, राइट। 8% ऑफ 72, वो 10% होता है 7.2। ये देख लेना कितना है, 8% ऑफ 72। ठीक है, 7.2 से थोड़ा सा कम होगा, 2% कम होगा, मतलब 0.72 प्लस 0.72 को 7.2 से माइनस कर देना। अभी सब कर लेना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2500। चलो, तो दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट। कुछ प्रॉब्लम थी नहीं इसमें। 2 इंटू 10,000 किया, यही हमने भी किया था, 2 इंटू 10,000 और 50 इंटू 25 इंटू 50। हाँ वही है जो सेम हमने किया, और 8% ऑफ 72। ठीक है, क्योंकि 25 इंटू, हाँ सेम है। तो 2500 हमारा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर देख लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, सेम। ठीक है, सो everyone is clear about this question. Question number 4 is enough. Now let's talk about the homework question. Calculate the stock turnover ratio for B. So same question is given to you, but now you have been asked the stock turnover ratio for B, not for A. So I have told you in the beginning, or I might not have told you in the beginning, but do remember you have to evaluate yourself in each and every question. So how many marks you have got out of 4, you need to tell me in the comment section, plus you need to tell me what is the answer of this fifth homework question as well. And it is very easy. Stock is getting turned how many times in a year? That is the meaning of stock turnover ratio. Okay, so calculate it and give me the answer, correct answer of this question in the comment section with the marks you got out of 4. Chalo, we are going to meet in the next lecture. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।